Today we are going to discuss about the respiration. Previous we are discussing the topic nutrition in plants, nutrition in animals. So today topic is respiration, and it is controlled by the enzymes and energy is released from the breakdown of ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ये रेस्पिरेशन जो है ये किससे कंट्रोल होता है? एंजाइम्स और एनर्जी के थ्रू, जो कि कहाँ से रिलीज होता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ब्रेकडाउन से ये रिलीज होता है. सो रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, एरोबिक एंड एनएरोबिक. Aerobic means breakdown of glucose in the presence of oxygen to produce more amount of energy. And anaerobic means breakdown of glucose in the absence of oxygen to produce एनर्जी. मीन्स कि एरोबिक में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, क्या करने, किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. क्या करता है? ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस. लेकिन एनएरोबिक में इसमें ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. Now we are going to discuss about the aerobic respiration. Aerobic respiration, oxidation of food materials by oxygen. ये क्या होता है? जो भी फूड मटेरियल्स में ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के थ्रू होता है. इसमें 36 ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो हमें एनर्जी देता है वो प्रोड्यूस होता है. ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हुए पायरूवेट में लाता है. कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में. साइटोप्लाज्म में ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हुए पायरूवेट बनाता है. उसके बाद जब ये पायरूवेट ब्रेक हो जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के में ब्रेक हो जाता है और फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाके प्लेस आउट होता है, जहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है. किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में. So once we are discuss about the aerobic respiration, that oxidation of food materials by oxygen produces 36 ATP, break down the glucose into pyruvate in cytoplasm. Pyruvate broke it into carbon dioxide and water and takes place in mitochondria where energy is produced by in the form of ATP. Now we are discussing about the anaerobic respiration. इसमें क्या होता है? ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है उसकी ऑक्सीडेशन करता है. इसमें सिर्फ 2 ATP यानी 2 एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट पाया जाता है. ये साइटोप्लाज्म में जो ग्लाइकोलाइसिस होता है और 2 पायरूवेट का प्रोड्यूसिंग होता है, मतलब ये 2 पायरूवेट बनाता है और ग्लाइकोलाइसिस होता है. कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में. और ये पायरुविक एसिड जो है ये ब्रेक डाउन करते हुए क्या फॉर्म करता है? इथेनॉल, वाटर और एनर्जी. वंस वी आर discussing about the anaerobic respiration, that it is the oxidation of nutrients in the absence of oxygen. It gives only 2 ATP. In cytoplasm, glycolysis and 2 pyruvate is produced and it breaks the pyruvic acid into ethanol, water and energy. If you want to write down or click it, then do it now. So student, after the anaerobic respiration, some equation I am giving you that will help you in the board examination. That ADP is the lower energy which combined with phosphate plus energy by through when it is going through the respiration, it produces ATP in higher energy. And then the second process, when the ATP is reactive with this one, it is used in the cell. So main the formula which I am giving you, it is asking in the board examination. So watch it carefully. When the glucose is break down and formed in the glycolysis in cytoplasm, it forms pyruvate in the form of pyruvic acid in 2 molecules. Then in the presence of oxygen which is present in the mitochondria, it releases 6 molecules of carbon dioxide plus 6 molecules of water and 38 ATP which releases the energy. So you have to write down or click, then do it will help you.
Student, the formula I am giving you, the ADP and ATP, the full form of ADP is adenosine diphosphate and ATP adenosine triphosphate. मीन्स कि ADP में जो है डबल फॉस्फेट होता है, 2 फॉस्फेट होता है, और एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में 3 फॉस्फेट होता है, जिस कारण से ये D और ये ट्राई लिखा हुआ है. Important points we are not discussing about it, that glucose, the formula of glucose is C6H12O6. It has the 6 carbon compound. So oxidation of glucose to pyruvic acid or the pyruvate is called the glycolysis. Pyruvic acid is a 3 carbon atom compound and is also called pyruvate. The fate of pyruvate formed during respiration depend on the presence of oxygen. The pyruvate is completely oxidized to carbon dioxide and water, and lots of energy is formed in the form of ATP. And the last one is lactic acid, is also a 3 carbon atom compound and is also called lactate, and its another name is hydroxycarboxylic acid, and the formula is CH3CH COOH and OH. This will write in this form. मीन्स कि अगर आप कुछ पॉइंट्स, आपको ये इम्पोर्टेंट है और अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपको ये पूरा जो इक्वेशन है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी. एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में कुछ पढ़ेंगे. जिस तरह से हम लोग उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में इक्वेशन के थ्रू हमने जाना था, अभी हम एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में भी जानेंगे. जैसे कि ग्लूकोज के पास 1 मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके साथ ग्लाइकोलाइसिस जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है तो उससे फॉर्म होता है पायरुवेट. वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये क्या होता है, यीस्ट जो हम लोग फर्मेंटेशन के लिए काम आता है, उससे ये रिएक्ट होके जो है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP यानी कि बहुत लेस एनर्जी प्रोड्यूस कर पाता है, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के कारण. जब ये ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस करने के बाद पायरुवेट में आता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड भी पाया जाता है और साथ ही साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP यानी कि एनर्जी भी प्रोड्यूस हो जाता है. इसलिए देखिएगा जब हम जैसे ह्यूमन बींग्स को जो है वो लॉट्स ऑफ एनर्जी चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बाय थ्रू द एरोबिक रेस्पिरेशन. व्हेनेवर देयर इज लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देन वी आर गेटिंग सफरिंग फ्रॉम द वेरियस थिंग्स. जस्ट फॉर एग्जांपल अगर देखिएगा कि एक फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, मीन्स कि जैसे एक रनर है, अगर दौड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, मसल्स क्रैम्प कभी कभी आ जाते हैं, बिकॉज लैक्टिक एसिड जो है वो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाने से लैक्टिक एसिड जो है वो कम हो जाता है, जिस कारण लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है, जिससे कि उनमें मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने लगती है और वो बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग करने लगता है. और उसी समय अगर हम जब रुक जाते हैं और आफ्टर 1 और 2 मिनट्स के बाद देखिएगा जब हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है तो फिर हमारी क्रैम्पिंग जो है वो कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है. मीन्स ये हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और जब फिजिकल एक्सरसाइज जब होती है तो हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम होने लगता है, जिस कारण से हमारी लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होने लगती है. So student, if you have any doubt related this topic, then you can write in the comment section. So till then, bye and have a nice day, and don't forget to subscribe and like to my channel.